little bit in more depth. Actually, in grade 9, there used to be this first chapter called Matter in Our Surroundings, which from this year has been taken off. The reason is because your batch, when you will move to 9, you are already studying and coming. This chapter was earlier not there in grade 8, means old course में ये chapter नहीं है. Before I forget, beta, what science book do you follow? It's a school book, not the NCERT book. हाँ, so you do me one favor, ममा के फोन से ना contents जो है ना, contents जिसमें chapter रहता है, भूलना मत, एक फोटो भेजना. You, निवेदिता and you. आराम से रहता है. हाँ, कोई भी घर पे कोई तो है. अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट क्लास में ले आना. एक बार साइंस बुक लेके आ जाना. अभी है आपका साइंस बुक? हाँ, contents, I just need the chapter names, okay? And Nivedita, you also do that favor to me, आराम से. So Arnav, mute कर बिटू. So this chapter, in grade 9 earlier, our first chapter used to be, fan is okay or should I increase it? I'm all okay. So our first chapter used to be Matter in Our Surroundings. This year onwards, that chapter has been taken off, right? You have a new science book, which you will be studying. And the chapter that you are going to study now, earlier was not a part of grade 8. But this is how they actually start building you with the concept of chemistry, matter. Like these are all physical chemistry. ठीक है? बात करते हैं. So our topic starts with the word matter, and we have to understand it a lot by example. Matter. तो कहते हैं what is matter? हाथ में मड आया, उठा के किसी मुंह में मार दो, ठपाक से जाके मुंह में लगा, है ना? Pick up a handful of semi-moist cow dung in your hand. That is also matter. Matter ही तो है. और इतने यही तो प्रॉब्लम है ना, ये रट्टू बधा मत करो. तो काउडंग उठाया, काउडंग के लड्डू बने, ये भी तो मैटर. तो उठा था क्यों नहीं? काउडंग केक्स नहीं बनता है जिससे हम, which is used as fuel, my dear, as a biofuel. हाँ, biofuel. नहीं, biogas is a different thing. Cow cakes are actually put on the walls and they are dried, and pieces of them, if you ever go to Rajasthan and if you go to Bihar, not Rajasthan, and you have litti chokhas, all littis are actually baked, and they are baked on what? That cow dung cake only, because that gives the right amount of heat. There's a concept. You can't use uranium to make kebabs. कबाब जल जाएगा. कबाब कोयले में भी नहीं बना सकते, कोयले का भी टेम्परेचर. हम जिसमें कबाब बनाते हैं इसको हम बोलते हैं चारकोल. यू नो द डिफरेंस बिटवीन कोल एंड चारकोल? Coal is the thing which you mine out from the earth. It's like a rock. Coal's heat is very high. कोल के हीट में कबाब बनाएंगे then the chicken will never be smooth, or paneer. Charcoal is when you take wood, dried wood, and then you will put a lot of fire in it. जलने देंगे थोड़ी देर के लिए, lot of flames, and then immediately extinguish it with water, right? जल्दी उसको पानी से भिगो देंगे, ये सब चार हो जाएगा. चार्ड काट कोयला बोलते हैं इसे हम हिंदी में. कोयला नहीं, काट कोयला, है ना? Then it will become charred. Then you dry it in sun. It will become extremely light. That is used for brushing teeth also. Works very nice. सुनने में खराब लगता है, but charcoal is excellent for face scrubbing also. अब अभी brands sell it, then we like it. वैसे charcoal से if you brush your teeth ना, then your teeth will be sparkling white. And these are age-old things that our purvaj or grandfathers and all used to do. Clear? So as we are coming back, so we are trying to study about cow dung. से बात हुआ, cow dung भी, हाँ, इसको हम मैटर बोलते हैं. तो एक और चीज देखो, जैसे हम चल के जा रहे हैं अभी right now, don't you feel a breeze which is coming onto you? You feel it, your hairs blow, your dress blows, and you feel comfortable. Do you see it? No. So if you don't see it, you don't get a gauge of mass. आप मुझे देखते हो तो ये मोटू आदमी है, इसका मास है, ये पतला है, इसका मास कम है. जिसको देखते नहीं हो तो कैसे होगा? तो ये बुक के डेफिनेशंस में देयर आर सम थिंग, लाइक अ बुक विल टेल यू मैटर, समथिंग व्हिच हैज मास and something which occupies space. Now this is the Rattutu definition. Occupies space. Here is where I introduce a third parameter, and can be felt. सोच के देखो,
Air is also matter, but to qualify air with these two things is very difficult. It has mass, no doubt about that. That's why you get air pressure. Occupy space, मतलब सत्य है, पर इतना इजीली हम बिलीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको दिखता नहीं है, बट कैन बी फेल्ट, आप देख सकते हैं. नाउ यू पुट काउडंग हियर. काउडंग हैज मास. काउडंग ऑक्यूपाई स्पेस लाइक ए लड्डू एंड कैन बी फेल्ट. सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है आपको, तो आप फील भी कर सकते हो. समझ में आया? सो बोथ काउडंग एंड एयर satisfy all this criteria. हम यहाँ बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मैटर के साथ साथ. Let's take a very nice example. Let's take something called, and this is one of my favorite example, a black forest cake. Okay, a black forest cake. From cow dung to cake straight away. Both are cakes, but that was cow dung cake. This is black forest cake. That was a fuel. This is a fuel for your hunger. Both are fuels. ठीक है, आ जाते हैं black forest cake में. Now, the way we are studying all topics, like, you know, the Western world has been more advanced in writing books on what you call science and other things. So in early days, all things are attributed to either Greeks. Greece में क्या होता था? Scientists नहीं होते थे उस जमाने में. Learned peoples were called philosophers. Like Aristotle was a philosopher. Archimedes was a philosopher. A philosopher is someone who knows about whatever science prevails in those days, mathematics, social norms, religions, practices, as well as political knowledge. The kings and all will consult them to make rules and regulations and all. तो ऐसे ही ग्रीस में that the concept of atoms and all, though we will get into what is atoms. So if you study some books, they will say there was a person in Greece whose name was Democritus. Democritus एक दिन एप्पल काटना शुरू किया. एप्पल काटा, एप्पल हाफ हुआ, हाफ को काटा, क्वार्टर हुआ, क्वार्टर को काटा, काटते 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 एक लेवल तक ही काट सकता है. Then it struck his mind. Actually, at what level can it go to? At what level can it go to? Then he coined that word atoms, जो कि atomos से आता है. Atoms means that the last particle, if you go on cutting an apple, it comes to what is, and that is what is documented in every book, whether you take up a book of matter and you read any foreign book or not. But long before Democritus, there was Maharishi Kannad in India, and it is documented. He has documented the word Parmanu. Parmanu means atom in Sanskrit. Anu means a molecule. Anu se bhi chota, Paramanu. Murkh, Param Murkh. Chatur, Param Chatur. Anu means molecule. Parmanu. समझ रहे हैं ना? एटम का डिस्क्रिप्शन हुआ है. तो अगर हम इस ब्लैक फॉरेस्ट केक को देखें बेटा, ये ब्लैक फॉरेस्ट केक तो एक मैटर है, एंड आई विल गोइंग टू टीच यू लिटिल बिट which will encompass some topics about what you call ninth also, matter. अब इसमें क्या क्या गया होगा आप सोचो. There must be sugar in it, there must be flour in it, there must be cream in it, there might be essence in it, there might be eggs in it, right? In chemistry, all these type of things are actually classified into 3 different class, and that we will come later. One is known as element. अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है. One is known as a compound, okay, and one is known as mixture. ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. केमिस्ट्री में ये दो चीजों को प्योर माना गया है. इसको प्योर बोलते हैं और इसको इम्प्योर बोलते हैं. इसको इम्प्योर बोलते हैं. ठीक है, वह अभी बढ़िया एग्जांपल देंगे. इसको इम्प्योर बोलते हैं. मिक्सचर इज समथिंग, मिक्सचर इज फॉर अ वेरी नाइस एग्जांपल, है भेलपुरी, राइट? You may make a bhelpuri to your liking. शी में से थोड़ा सा सौंठ और दीजिए, ही में से मिर्ची थोड़ा और बढ़ाइए. There is no uniform recipe or constituent out there, right? There you don't have a right grading. So आप elements और compounds को ऐसे ही mix कर दीजिए, वो भी mixture बन जाता है. इससे आगे grade 8 में हमें इसकी जरूरत नहीं है. पर एक सुंदर चीज देखते हैं. Mixture is impure और ये pure. अब देखते हैं. Your mom or your parents must be always forcing you to have a glass of milk, है ना? क्योंकि मिल्क पीना शरीर के लिए अच्छा है करके बोलते हैं. ठीक है, तो एक चीज आ गया हमारे पास. देखो कितना सुंदर सुंदर केमिस्ट्री में भी आपको आ गया. एक ग्लास में आपको किसी ने दिया मिल्क, ठीक है. वहीं एक और ग्लास में आपको किसी ने दिया, नहीं आपको नहीं दिया, रखा हुआ है पोटेशियम साइनाइड. ठीक है, पोटेशियम साइनाइड. पोटेशियम साइनाइड एक ऐसा चीज है
मुंह में लगाते इमीडिएट फोटो हो जाएंगे आप, यू नो दैट। साइनाइड के बहुत सारे रूप होते हैं, तो पोटेशियम साइनाइड इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक, मीन इमीडिएट डेथ, दैट इज व्हाट पीपल यूज। हाँ, मुंह में जाते ही डेथ हो जाएगा, ठीक है। ऑल दोस पीपल हु अवॉइड अरेस्ट एंड ऑल, दे टेक दिस साइनाइड पिल, आपने मूवीज में देखा होगा, राइट। तो पोटेशियम साइनाइड एक ग्लास में है, पोटेशियम साइनाइड, और एक ग्लास में है मिल्क, ठीक है। मिल्क को केमिस्ट्री मिक्सचर मानता है, और ये है कंपाउंड। केमिस्ट्री की भाषा में दिस इज अ प्योर सब्सटेंस, दिस इज अ इम्प्योर सब्सटेंस। वेलकम टू केमिस्ट्री। हाँ, milk is not a compound, milk is a mixture, milk is a mixture. So if you are a mixture, you are impure, whereas if you are a compound, you are pure. आप इसको देख रहे हैं by your consumption. Chemistry doesn't see it by its consumption. Chemistry sees pure impure by a concept. If you are a pure substance, you are made up of one kind of particle. पोटेशियम साइनाइड में है पोटेशियम और साइनाइड KCN। इसमें इसको अगर हम ब्रेक करें ना, इफ दिस इज आल्सो मैटर, राइट, इफ वी ब्रेक इट वी विल ओनली गेट मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा। आप पोटेशियम साइनाइड बंडलागुड़ा से उठाइए, या आप ब्लूम फाउंटेन साउथ अफ्रीका से उठाइए, या आप लंदन से उठाइए, as long as it is potassium cyanide and I bring the molecule of potassium cyanide, which you can't see with your eyes, you will not see any difference, and you won't be able to say this is British potassium cyanide and this is Indian. समझ में आ रहा है ना? Whereas when you come to milk, milk is a composition. You can have toned milk, fatty milk, this milk, calcium rich milk. Milk is a mixture. समझ में आ रहा है? तो that pure and impure concept don't go by taste. Chemistry के मुताबिक अगर किसी चीज में एक kind of particle ही है, getting it? Only one type of particle, then that substance is called a pure substance. Elements and compounds are pure substance. इनके बारे में ज्यादा हम जाके पढ़ेंगे कहां पे? इन ग्रेड 9 में पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए ये बात करते हैं कि मैटर के अंदर ये तीन चीज हो सकता है। समझ में आया? ये जो चीज है मिक्सचर, ये मिक्सचर कहां से आता है? Many elements and many compounds can be mixed in any proportion that you want. Let me give you an example. ठीक है, यहां भी इंटरेस्टिंग चीज है। Let's say you take iron powder. अच्छा, मैं Fe लिख रहा हूं, आप समझ नहीं पाओगे। आयरन इज Fe, फेरम। हाँ, so आयरन पाउडर, और इसके साथ हमने लिया सल्फर पाउडर, दोनों को क्रश कर दिया हमने, बिल्कुल क्रश कर दिया है, और आयरन और सल्फर को भेलपुरी की तरह मिक्स किया। ठीक है, भेलपुरी की तरह मिक्स किया। इट्स स्टिल मिक्सचर। मिक्सचर में प्रॉब्लम क्या है? मिक्सचर में whoever are the constituents in the mixture, their parental property is not lost. समझो, आयरन का कुछ एक प्रॉपर्टी रहेगा, सल्फर का भी कुछ एक प्रॉपर्टी रहेगा। That property will not be lost if you make a mixture. What to do? आपने इसको दोनों को बना दिया एक भेलपुरी, एंड देन भेलपुरी बनाने के बाद हमने इसके पास ले आया एक मैग्नेट। जैसे ही आप मैग्नेट लाओगे, सारा आयरन चर्रट करके अलग हो जाएगा। Are you understanding? Parental property is not lost. Chemical combinations does not take place in mixtures. Chemical change पढ़ा होगा ना आपने? So what is a chemical change and physical change? Chemical change जब होता है ना, then new substance with new properties form होगा। अब देखिए, तो इसको हमने क्या किया? इसको हमने मिक्स किया था। मिक्स करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन में, lot of examples I'll speak in this class. I brought a magnet and I could immediately separate out all the iron particles. Agreed? There is another funda. Once I have mixed it, and after mixing, if I heat this, heat करो, तो ये ना एक black lump हो जाएगा, black lump। अब अगर मैं इसके पास मैग्नेट लाऊं ना, आयरन अलग नहीं होता है। So a chemical change has happened. A new substance with new properties have been formed. Have you understood? So a chemical change will always involve absorption or release of energy. आपने हीट दिया था, एनर्जी सप्लाई किया था। जब भी आप एनर्जी सप्लाई करोगे या छोड़ोगे, तो एक नया सब्सटेंस बन जाएगा। आप सोचो, मैं बहुत बारबेक्यू करता हूं, मेरे बालकनी में बहुत सारा कोल रखा हुआ है। There is abundant of oxygen. All coals are carbon. So you mean to say that carbon dioxide is getting prepared? No, carbon dioxide will get prepared when the coal will burn in oxygen. I have to supply energy. And whenever
a new substance will be formed, its parental properties will be lost. एक और मजेदार एग्जांपल देखो, hydrogen as a gas is considered to be highly explosive. I have not yet started the chapter, I am just building your thought. Hydrogen as a gas is highly explosive, भस्मासुर है वो. अगर हाइड्रोजन सिलेंडर में आग लग गया, it will just blast off like a bomb. Okay. Oxygen is another gas. Is oxygen flammable? Is oxygen flammable, I'm asking? Oxygen does not burn. Write this right today itself. Oxygen is a non-flammable gas. Oxygen supports combustion. क्या अजीबोगरीब कुदरत है, देखो, ऑक्सीजन जलता नहीं है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है. Like LPG is a flammable gas. Oxygen is not a flammable gas. Oxygen helps in combustion. ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? सो जस्ट सी नाउ मजेदार चीज देखो, हाइड्रोजन इज हाईली फ्लेमेबल, समझ रहे हो ना, एंड ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबस्शन. डोंट यू थिंक ये कॉम्बिनेशन अभी डेडली हो रहा है? दिस इज हाईली एक्सप्लोसिव एंड दिस वन सपोर्ट्स कंबस्शन. ये दोनों आसपास रहना ही तो हाईली डेडली है. इनका अगर हम रिएक्शन करें तो पैदा होता है एक बच्चा वाटर, जो आग को बुझाने में हेल्प करता है. सोचो, दैत्यों के घर में प्रहलाद पैदा हो गया. यू नो द स्टोरी ऑफ भक्त प्रहलाद. सो ही वाज बोर्न इन द किंगडम ऑफ डीमंस, बट ही यूज्ड टू वर्शिप विष्णु. तो ये देखो, डीमन का बेटा प्रोटेक्टर बन गया है. यही केमिस्ट्री की मजेदार चीज है. हाईली एक्सप्लोसिव गैस reacts with somebody who is an extreme supporter of combustion, gives out a product which is used as a fire extinguisher. बड़ी अजीब चीज है. ये चीज समझ में आ रहा है? तो ये सब हम 9th में देखेंगे मजेदार से. ये तो आपको बताने के लिए है. तो आइए अब देखते हैं कि हमारे पास जो मैटर है, ओके, मैटर को कहा जाता है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स. और ये पार्टिकल्स आपके ग्रेड 8 के कॉन्सेप्ट में कैन बी आइदर एटम्स और कैन बी मॉलिक्यूल्स. इससे ज्यादा हमें कोई पूछेगा नहीं. पर सवाल आता है, सर ये वाला पार्ट आपको किसने बताया कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स? हाउ डू यू प्रूव इट? साइंस नीड्स, अदालत को सबूत चाहिए, बोलने से तो नहीं होगा. तो एक एक्सपेरिमेंट करें. आइए, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट अ थिंग कॉल्ड पोटेशियम परमैंगनेट? If you have an ancestral house where you have your own kuan or your own what you call borewell, or you have a what you call sump tank, जैसे नीचे टैंक रहता है ना, यहाँ से पानी ऊपर को हम निकालते हैं, सब घरों में रहता है. और पुराने जमाने में water supply from the municipality will come for some hours, so the water comes and accumulates at the sump. Same thing in our Pebble City also. Water comes and accumulates in a sump tank right below. And then based on our need we lift the water and we raise it to the overhead tank. जब जब चाहिए आप पानी यूज करते हो. अब ये सम का टैंक तो गंदा होता जाता है. So potassium permanganate is a purple color thing and it is used, हाँ, तब टैबलेट जैसा भी और चंक्स भी मिलते हैं. It is used as a cleanser. कुआं में खूब छोड़ते हैं. जैसे विलेजेस वगैरह में अभी जो मौसम चल रहा है ना, इसमें वर्म्स, इंसेक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं. So to prevent all these waterborne diseases, cleansing will happen and potassium permanganate is used as a cleansing solution. The thing is, if you hold potassium permanganate in your hand and you remove your fingers, you will immediately see. हल्दी पकड़े हो कभी? टर्मरिक. हल्दी पकड़ते ही हाथ छोड़ते ही क्या होता है? टर्मरिक लग जाता है ना, येलो. You can't say you didn't touch it. Looking at your fingers, I can say you touched turmeric. वैसे ही potassium permanganate is like that. The moment you touch it, pink impression will be on your finger. No, that is a descaling tablet. That is a different tablet. तो पानी पर्पल नहीं, वो those you'll study in grade 12, it forms something called ligands and complex. It can pull out all impurity and stack it in one place. Same thing is done by alum also. हिंदी में जिसे हम फिटकरी बोलते हैं. Alum can be used in any of your swimming pools and all. You just put alum. Alum will attract all the dirt. उसको ग्रुप करके वो एक कोना में आ जाता है. पानी एकदम क्लीन हो जाएगा आपका. हाँ, टैबलेट नहीं, तुम जो बोल रहे हो that is a anti-scaling tablet. The washing machine tablet is not potassium permanganate. Potassium permanganate is exactly her dress का ये जो orchid flower है ना, वो वाला कलर है. वो हम सब टैंक्स में डालेंगे. हाँ. तो फिर अगर हम पानी खोलेंगे तो इंसेक्ट नहीं आएंगे? कौन सा?
इंसेक्ट से तो इंसेक्ट तो ऐसे भी आता है, इंसेक्ट पानी में रह के तो अपना जान थोड़ी देगा। फटीचर बात कर रहे हो, टैंक तो ढका हुआ रहता है, इंसेक्ट तो रहता ही है, मस्कीटोज ब्रीड बट द मस्कीटो डजंट ड्राउन एंड गेट डेड। व्हाट यू डोंट वांट इज बैक्टीरिया फॉर्मेशन, स्वाम्पी फॉर्मेशंस विल टेक प्लेस, शुरू हो गया है, ठीक है, those formations will take place that you don't want। सर आपको क्या पता है, देख लिया बेटा मैं, हाँ। So I'll have to hold for some time. So potassium permanganate, have you understood? It's a pure substance. Chemistry के language में potassium permanganate is something pure. I'm waiting. Wait, beta. Yeah, it's come. So potassium, ये पहले ग्रेड 9 में होता था, ये आपके बुक में ये एक्सपेरिमेंट नहीं रहेगा, बट इट्स अ वेरी नाइस एक्सपेरिमेंट। पोटेशियम permanganate, potassium permanganate, and it is pink in color, right? अगर कोई इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहता है वो है KMnO4, आपको इतना जरूरत नहीं, बट your ICSE counterparts know all this by names, so even if your book doesn't have, you start writing, because कंपटीशन में आगे वो बच्चा भी आएगा आपके साथ। KMnO4, K stands for potassium, Mn stands for manganese, and O stands for oxygen, and it is ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, और ये एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस मतलब as long as it is KMnO4, whether you have brought it from Sydney or you have brought it from Patna, at a molecular level you cannot distinguish between the two। समझ में आया ना? Are we fine on this? Right, good. So what we do now, हम इसके बाद क्या करते हैं, हम लेते हैं छोटे छोटे ट्रफ लेते हैं। ट्रफ मीन्स ग्लास टैंक, जैसा कि हमने एक ट्रफ ले लिया। रुको 1 मिनट, हमने ऐसा एक ट्रफ लिया है, ऐसे एक ट्रफ लिया, ओके, एंड इसको करते हैं क्लोन, और इसको भी करते हैं क्लोन, एक और अगर आप चाहते हो तो एक और बार क्लोन कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है, समझ में आया? नाउ ये हमारे 4 ट्रफ्स है, ग्लास एक्वेरियम के टैंक की तरह समझ लो, और इसमें हमने क्या किया बेटा, इसमें हमने एकदम क्लीन वाटर भर दिया है ताकि आर पार दिखे आपको। क्या दिखे? आर पार दिखे। अच्छा, why am I showing this experiment? Can you right now tell? मैं ये एक्सपेरिमेंट क्यों बता रहा हूँ आपको? अरे, that is the problem. You guys are absolutely not attentive. You all are only listening. Why am I discussing this experiment? Why are you saying liquids does not have a fixed shape? Have I spoken about liquid also? No. So to find like the formation of particles. हाँ, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल। स्टोरी लाइन को याद रखिए, मैं पहले भी बोला, who on earth told this? Why should I believe? And these particles are atoms and molecules. आपके ग्रेड 8 में पार्टिकल्स को एटम्स और मॉलिक्यूल, मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, आप लोग खो जाते हो, एंड यू आर कनेक्टिंग व्हाट लिक्विड्स। ट्राई टू, साइंस रट के नहीं पढ़ा जाता है, साइंस समझ के पढ़ा जाता है। अगर आप रटोगे तो आप गंदा ही लिखोगे आंसर, एंड बिलीव मी, these are, chemistry is not like physics in later classes that you will get numericals, you will get lot of theory। अगर आपका राइटिंग करेक्ट नहीं है तो आपको लड्डू ही मिलेगा। So we have taken 4 troughs, similar water, and we have filled it, right? Now what I do, मैं एक ट्रफ में एक पोटेशियम परमैंगनेट का चंक डाल देता हूं, ठीक है, और चंक डाल के थोड़ी देर छोड़ देता हूं। तो थोड़ा देर छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये पूरा पानी एकदम बढ़िया से मिक्स हो जाएगा, एंड इट विल बिकम पिंक इन कलर। हैव यू अंडरस्टूड? इट हैज बिकम पिंक इन कलर। नाउ अंडरस्टैंड द लॉजिक। Then what I do, I take 1 spoon of this water, and it's pretty dark pink now. I take 1 spoon of this water and I drop it in this tank. समझ में आया? क्या होना चाहिए? This water will also become completely pink, but however, the intensity of pink will be less. Agreed? Then I take 1 spoon from here and I put here. Now what do you observe?
लेकिन कलरेशन तो होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और, फिर यहां से उठा के यहां पे छोड़ दिया, बहुत कम। तो हम यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे हमें डार्क दिखेगा, यहाँ पे हमें पेंट दिखेगा, यहाँ पे हमें पेंटर दिखेगा और पेंटेस्ट दिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना। सवाल आता है ये कलरेशन क्यों हो रहा है। अब साइंटिस्ट की तरह सोचो, सादा पानी था पहले, ये इसमें कलरेशन क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया कि ये कलर हो गया। हाँ, आप मॉलिक्यूल मत सोचो, यू थिंक एज इफ यू हैव नॉट रेड दिस चैप्टर। व्हाई डू यू सी कलरेशन हैपनिंग? अगेन आई डोंट वांट दोस वर्ड, इंप्योरिटीज कहां से आ रहा है, यू आर नॉट थिंक वेरी बेसिक। Why did this liquid turn pink first of all? वो जो ऑब्जेक्ट है उसका ही सबसे ज्यादा पिंक कलर। फिर आपको कैसे पता? मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। It was white color water, means colorless water. I dropped a chunk of potassium permanganate. ये पानी पिंक क्यों हुआ? सिंपल आंसर चाहिए। अभी भी वर्ड नहीं आ रहा, सिंपल नहीं सोचते हो ना आप, चाहते हो कि आप बुक का एक आंसर दो। क्यों अर्णव एक आंसर बोलो तो, क्यों पिंक हुआ? आव्यान बोलो, पार्टिसिपेट, क्यों पिंक हुआ? मिक्स्ड विद द वाटर, सिंपल, उतना ही मैं पूछ रहा था। पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स्ड विद द वाटर, सिंपल। हाँ, वाटर में डिसॉल्व हो गया, खत्म बात, वाटर में डिसॉल्व हो गया, ठीक है। दैट इज वाटर, एकदम सिंपल लैंग्वेज में सोचो, पोटेशियम परमैंगनेट वाटर में डिसॉल्व हो गया। अब सवाल कहता है पोटेशियम परमैंगनेट का हमने क्या लिया था? चंक लिया था ना। अब अपने आप को पूछो, क्या ये मैटर है? खुद को पूछो, इज इट मैटर? व्हाई निवेदिता यू आर नॉट आंसरिंग? आप सबसे पहले मैटर पढ़ाते डेफिनेशन बोल दिए। ये आप, आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमीन यू, this is the drawback of our education system. A child knows the definition, but if the context is twisted, the child is unable to identify. It is not her fault, क्योंकि आपको ये ऐसे पढ़ाया नहीं जाता है। मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, ये मैटर है क्या? हाँ, आप ही ने बोला मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ये चंक को पकड़ने से फील तो होगा ना स्पेस, ये मैटर है। अच्छा, सेकंड हमारे पास एक और था, वाटर। क्या वाटर मैटर है? हाँ, वाटर के पास भी मास है, वाटर को स्पेस ऑक्यूपाई करता है, शरीर पे लगे तो फीलिंग भी होता है, यू कैन फील वाटर ऑल्सो। तो दोनों तो मैटर है, और हमारा बुक कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। आखिरकार ये कलरेशन क्यों हुआ पहले लेक्चर में? इट मस्ट बी कि मैं एक थ्योरी डालता हूं कि ये जो चंक है ना पोटेशियम परमैंगनेट, ये पोटेशियम परमैंगनेट चंक्स के कुछ तो पार्टिकल्स होंगे इस तरह से। आई एम कंसेप्चुअलाइजिंग, मैं थॉट, आई एम जस्ट सेइंग। और उसी तरह वाटर के भी कुछ पार्टिकल्स होंगे कुछ इस तरह से। समझ में आ रहा है? अल्टीमेटली यहां पे इन दोनों के बीच में एक बैटल हुआ होगा, और ये बैटल होने के बाद कलरेशन हुआ होगा। वी कैन अज्यूम समथिंग लाइक दैट। और इसके बाद इट बिकेम सम पिंकिश वाटर, जो अलग ही एक थोड़ा सा लाइटर पिंक। आई डोंट हैव लाइटर पिंक, सो व्हाट कलर डू आई यूज? आई हैव टू यूज पिंक ओनली। बट इमेजिन अ न्यू पार्टिकल कलर जैसा है, लाइटर पिंक कलर जैसा हो गया है, दिस इज लाइटर। यही वहां पे गया है। That's the only thing has gone here. Here also there must be some particle match has taken place. So what does it mean? Matter एक दूसरे में मिला कैसे? The whole chunk dissolved. Where did the chunk go? Matter is composed of particles, and these particles of potassium permanganate must have gone and mixed very well with the water particles. Now what do you mean by mixed very well? Water क्या demolish हो गया या? No, nothing like that. There must have dissolved. So dissolve का मतलब क्या है? Okay, let me say that a bus has come to my bus stop, having children from the previous stop who are seated, and then few children start boarding from my bus stop. As soon as they get into the bus, I can compare those children as some chunk.
All the children who got up from my bus stop are like chunk. As the bus moves 10-15 meters, will I have one standing child? No, everyone is seated. So can I use the word this chunk got dissolved in the bus? I can use. So what actually happened? Those children must have found spaces between the already boarded children and have gone and sit in those blank seats. The same thing is happening here. The potassium permanganate particles must have found space between the water particles and have gone and sat in between them. Now you are seeing this at a very high, big level. This is happening at a very microscopic level. समझ में आ रहा है? Then you took one sample from here and you put it here. This sample also has millions of particles, but the intensity is little bit less because rest of the solvent is all water. So they have also gone and spread. Every time the color changing means that matter has got particles. This matter is different. This one is slightly different from the original potassium permanganate. Do you agree? This matter is also composed of particles which have spread here. Now you take a sample from here and you put here. Every time you are seeing coloration, though it is getting fainter and fainter, it says it is a proof that matter contains particles and particles occupy spaces between other particles. आपको मजा नहीं आ रहा है तो एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट्स टेक 1 glass of sugar, 1 glass of water, और उसमें हम चीनी मिला देते हैं. चीनी मिलाते ही चीनी गायब हो जाता है. कहाँ गया? Sugar, another matter, water, another matter. So the sugar particles must have found spaces between the water particles and they have gone and sat. अब थोड़ा हाई लेवल, ये इतना तक आपका बुक भी पढ़ाता है, ठीक है? So if you have a glass of water, if you have say a glass of water and you mix here sugar, आप शुगर मिक्स करते हो तो हम लोग इसको कैसे देखेंगे? शुगर पार्टिकल्स, दिस इज से these are say water particles, these are water particles and our sugar particles must have occupied the spaces in between them. These are sugar particles, ठीक है? And they have occupied the spaces between them. अब यहाँ पे इंटरेस्ट देखो. कभी कभी now what happens, ये सब तो पार्टिकल्स है. अब आप बस में चलो. Sometimes when the child gets up into the bus, suppose that the child, a bus has come already pre-filled with many students. Enjoy. आप जब तक enjoy नहीं करोगे आप समझ में नहीं आएगा. A bus has come with lot of students and it has come and stopped at another bus stop. Few more children are getting in. कुछ children देखना उठ के बैग लेके they are unable to decide. There are two reasons. Maybe the existing children, suppose एक उज़ैर है, इस तरह से बैठा हुआ है, neither he is on one seat, neither he is on the other seat, जानबूझ के बदमाशी, and वो कहाँ पे है? थोड़ा बीच में बैठा है, तो child is uncertain. तो आपका बस में कंडक्टर अम्मा ये कोई क्या बोलता है, बेटा साइड हो जाओ, बैठने दो उनको, है ना? तो यही प्रॉब्लम जब आप करते हो, शुगर को डिसॉल्व करने के लिए आप क्या करना शुरू करते हो? स्टरिंग करना शुरू करते हो. अच्छा, स्टरिंग करने से क्या हो रहा है? Stirring creates friction. Friction creates heat. Heat is a form of energy. That energy will be activating these particles to vibrate. This is grade 9. As you vibrate, you create something which is known as interparticle space. ये जो matter is composed of particles ना, and particles have space between them. आप उनके बीच में there is a natural space. आप और हीट देने के लिए this particle, a particle will randomly start vibrating in this direction. इसको हीट आ गया है. Once the heat is supplied, it will start vibrating and it will create space. That's why you do stirring. समझ में आ रहा है? अब आप बस में देखो, कभी-कभी आप जाके बैठते नहीं हो ना, तो बस में भी आपको वही हीट देना होगा. तो वही कभी क्या करना है, बैठो जाके, चुप, जैसे ऐसे बोलता है सब बच्चा बैठना शुरू हो जाता है. Or you want to see it in different way, when you come by Indigo and on, and sometimes you don't get an aero bridge, then you get a bus. A shuttle picks you up from the apron. Have you seen? Everybody will be at the door. Then one Indigo person will come and say, ma'am, please get inside. Please get inside. What is he doing? All particles को energy दे रहा है, डांट रहा है ना. Get inside, get inside. Ultimately you see जितने लोग बाहर थे वो सब भी अंदर आ गए. So once you apply heat,
और एनर्जी, ये सब सुनते जाइए. वंस यू अप्लाई हीट और एनर्जी, द इंटरपार्टिकल स्पेस इंक्रीजेस, पार्टिकल गेट्स एनर्जाइज्ड, एंड देन यू विल बी एबल टू डिसॉल्व मोर शुगर इन इट. अब सोचो, हमने एक ग्लास ठंडा पानी लिया और एक ग्लास गर्म पानी लिया, इसमें ज्यादा चीनी जाएगा? गर्म पानी में चीनी जाएगा, obviously. And sometimes, you know, if the sugar is not getting dissolved, you immediately put it little bit in the microwave oven and देखोगे फिर sugar अपने आप dissolve हो गया. अब एक और नया गेम खेलते हैं. अब हम क्या करते हैं, ये टिपिकल है ना, lot of children are now going from our apartment, but the school is still not giving a bus. School is still not increasing another bus. Means the bus is completely filled. Now डांटो, ठपकारो, जो करो, और स्पेस आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, तो उस एग्जांपल को देखते हैं. टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड गो ऑन एडिंग शुगर. यस, शुगर ऐड करते 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 एक लेवल आ जाएगा एंड यू आर नॉट अलाउड टू स्टर. ऐसे थोड़ा सा स्टर भी किया, स्टर में कितना सा हीट होगा, जितना, बट यू आर नॉट सपोज टू हीट इट. हाँ, उसके बाद जैसे ही आप शुगर डाल रहे हो ना, शुगर इज नो मोर डिसॉल्विंग. ऐसे टाइम में हम कहते हैं कि इस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड. जैसे हम कहते हैं ना, सर पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, मेरा दिमाग सैचुरेट हो गया है. मींस देयर इज नो मोर एम्प्टी स्पेस इन विच आई एम एबल टू एब्सॉर्ब द लर्निंग. सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या करो, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को लेके रेफ्रिजरेटर में डाल दो, ऐसे नॉर्मल, नॉट इन द आइस बॉक्स. जैसे आप रेफ्रिजरेटर में डालोगे, रेफ्रिजरेटर में डालते क्या होगा, रेफ्रिजरेटर विल कूल इट. कूलिंग मींस एनर्जी लॉस. एज सुन एज एनर्जी लॉस विल हैपन, ये जो वाइब्रेट किया था और करके स्पेस गया था, कंडक्टर चेंज हो गया. नाउ द कंडक्टर, प्यारे बच्चों जैसे मर्जी बैठो, तो बच्चा से कहता है हट, तुम उस बस स्टॉप से आना, हटो. सो हर बच्चा, अभी क्या होगा, शुगर्स विल स्टार्ट पॉपिंग अप. You want to see this example mean, and all of you when you are, एक मिनट, आपका जब स्टमक वमक अपसेट होता है और you have not diarrhea टाइप, आप ये ORS लेते हो ना, oral rehydration solution, ये तो मेटप्लस में भी मिलता है, the powder that you take. So what you do, ORS कभी भी फ्रिज के पानी में नहीं मिलाते हैं, नॉर्मल वाटर में. आप करके देख सकते हो घर में. Take one bottle like this and mix one ORS. You can drink any day, whether you are ill or you are not ill. It's just salt solution. So there's a nice example. All of you can do. You can go to MedPlus, buy one packet of ORS, empty it in one 1-liter bottle, normal water, and shake the bottle. You will see that the entire ORS has mixed. Bottle has become clear. इस बॉटल को 20 मिनट फ्रिज में रख दो. जैसे आप बाहर निकालोगे, नॉट इन रेफ्रिजरेशन, जस्ट नॉर्मल फ्रिज, जैसे आप बाहर निकालोगे ना, पूरा ORS नीचे करके उठ गया. All the space that you created by heat, all the space have been now pulled down, so the spaces have got reduced. तो intermolecular और interparticle space हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर interparticle space है तो हम उस चीज में दूसरा चीज मिला सकते हैं. लिक्विड में इंटरपार्टिकल स्पेस ज्यादा है, इसीलिए पानी में चीनी जा सकता है, पर टेबल में चीनी नहीं जा सकता है, क्योंकि टेबल में इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं है. इट इज सॉलिड. है भी तो बहुत कम, जाता है, सॉलिड्स में भी जाता है. इफ यू गो टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑल वेयर देयर आर ब्लैक बोर्ड्स एंड द ब्लैक बोर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर लास्ट 10-15 years, then you will see some marks on the blackboard, not cracks, where the chalk has actually gone inside. एकदम आराम से घुस चुका है, आप नाखून से भी फील नहीं कर पाओगे. बट दैट्स years and years, very difficult. अच्छा देखो, तो फिर गैसेस में क्या होना चाहिए. गैसेस में तो, और गैसेस आर लाइक एकदम छपड़ी बच्चा, नो टीचर इन क्लास, डांसिंग लाइक मंकीज, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस. गैस में कोई भी गैस मिक्स कर सकते हैं. बेस्ट एग्जांपल इज आवर एयर. अरे भूतनी के पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, 10 और दूसरा मिक्सचर ऑफ अदर गैसेस भी है. LPG that you are using, LPG is a mixture of many gases. It has got butane, isobutane, partial propane. तो गैस में तो गैस तो आ जाता है. भाई साहब थोड़ा जगह मिलेगा, आ जाइए आराम से, जो भी मिक्सर. तो अभी कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है. मैटर के पास क्या रहता है, पार्टिकल्स. ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स. और इन पार्टिकल्स के पास क्या होता है, स्पेस होता है. प्रूफ क्या है, सर चीनी पानी में मिल गया, और चीनी थोड़े ना गायब हो गया, कहां गया,
कहां गया? वेयर डिड इट गो? मिक्स हो गया, मिक्स हो गया, मिक्स होके भी कहां गया? पानी ने हल्ला नहीं किया, मत आओ हमारे पास। तो वाटर पार्टिकल्स के बीच में जाके शुगर पार्टिकल्स अपना पोजीशन ले लिया। हाँ, सहज। और जहां तक खाली रहेगा उतना तक आप मिक्स हो सकते हो। जैसे ही पोजीशन भर गया, इसके बाद जब आप मिक्स करोगे, मिक्स नहीं होगा, बाहर आ जाएगा, उस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि यू आर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन वहां हम दो चीज कर सकते हैं। वहां अगर फिर से हीट कर दिया ना, सैचुरेशन पॉइंट और ऊपर चला जाएगा, हीट करते ही और स्पेस हो जाएगा, डालो और चीनी। या फिर एक और काम कर सकते हैं, थोड़ा और पानी डाल दो। पानी डालते ही नए नए वाटर पार्टिकल्स आएंगे। वो लोग बोलेंगे हम लोग एम टावर है, एन टावर, बहुत खाली फ्लैट है, आ जाओ आ जाओ। और सारा शुगर पार्टिकल्स उसमें घुस रहा है। हाँ, पहले उसका सुन ले, बोलो बेटू। अच्छा, अरे धीरे 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 धीरे। तुम कल से डायपर पहन के आओ, तुम्हारा हर 5 मिनट में वॉशरूम जाने का रहता है। हाँ बोलो। Sir, so can you mix the sugar in water? Will it be the same shape or different? हाँ, ग्रैन्यूल हो जाएगा। But it doesn't mean that if you mix 1 spoon of sugar and you refrigerate immediately it will come up. No. Try to make a. Do you know something called caramel? अच्छा, बटरस्कॉच आइसक्रीम आपने खाया है? बटरस्कॉच आइसक्रीम में एक चंकी 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 चीज मिलता है ना, कच 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 कर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैरामल। कैरामल कैसे बनाते हैं? कैरामल बनाने के लिए फ्राइंग पैन में इतना शुगर लो और थोड़ा थोड़ा पानी डालो and make it a thick paste. पानी ज्यादा नहीं डालना है। And once you make it a thick paste and you heat it, immediately cool it. Cool करते ही ना वो ऐसा भंगा टूटा हुआ कांच की तरह ऐसे आ जाएगा, like a broken glass. And then just break it into pieces and put 1 churn of the grinder. Now you will get rough granules. वही आइसक्रीम के ऊपर स्प्रेड कर देना है, वही बटर स्कॉच का। Now that is, वो सॉल्यूशन को अगर आप रेफ्रिजरेट कर दोगे ना, it will come up. And the best thing is just go to MedPlus, buy 1 ORS packet. ORS you should have at home also, and you can drink it any day. It is a good, and there is nothing wrong. You mix ORS in water and then refrigerate the water. ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल। तो यहां से हम क्या क्या लिख सकते हैं? इतना जो हमने कहानी लिखा, तो इन कहानी के कुछ कुछ आज के हमारे डिस्कशन टेक अवेज। नहीं, बिल नहीं, अभी कहाँ बिल का टाइम हुआ है? अभी तो बहुत टाइम है। अभी बाजू वाले टेबल का बच्चा एक फोर्क गिराएगा ठंग खलंग खंग करके। डिस्कशन टेक अवेज। नंबर 1, मैटर। मैटर में आपको क्या पता होना चाहिए? मैटर का डेफिनेशन। और डेफिनेशन के लिए निवेदिता मैडम ने बोल ही दिया है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। आई वुड लव दैट इफ यू ऐड 1 more line and can be felt. एग्जाम्पल एयर दे देना, तो टीचर को कोई डाउट नहीं होगा। एग्जाम्पल एयर, ठीक है? तो मैटर का डेफिनेशन। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अभी सब ग्रेड 8 सेंट्रिक। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन पार्टिकल्स की खासियत क्या है? हैव स्पेस बिटवीन देम। और यहां हमने 2 एग्जाम्पल देखा, KMnO4 इन वाटर, पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर, एंड शुगर। शुगर का फॉर्मूला चाहिए? Yes, sir. C12H22O11 इन वाटर। ये तो कुछ भी नहीं है, इसके बड़ा बड़ा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक से देखोगे फिर खट्टा है। अच्छा, तो शुगर इन वाटर, ये भी क्या हो गया? इसको स्पेस इन बिटवीन देम। ठीक है, यहां पे हमने कुछ एडिशनल बातें भी की कि स्पेस को हम एक्चुअली इंक्रीज कर सकते हैं, है ना? कैसे कर सकते हैं? अगर आप हीट दे दो, हीट दे देने से स्पेस इंक्रीज हो जाता है। एंड कुछ हायर लेवल टॉपिक्स भी हमने यहाँ पे बात किया है, जैसे सैचुरेशन। अगर कोई पूछे, आपको पूछेगा नहीं बेटा सैचुरेशन क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट यू कैन मिक्स इन अ सॉल्वेंट विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर चेंज मत करो, फिर सैचुरेशन गया। It is like I'm teaching you maths for 2 hours and there is a lovely spa also happening at your back.
सर पे, देन यू विल फील कंफर्टेबल टू एब्जॉर्ब अनदर हाफ एन आवर। वो नहीं चलेगा, बैठ के बोर हो जाना है और उस लेवल में बोलना है सर आई कांट टेक एनी मोर, दैट इज सैचुरेशन। सो नीदर यू कैन ऐड, you cannot do dilution nor can you add more temperature, that is more heat, or you cannot change the pressure। आप प्रेशर भी नहीं बढ़ा सकते, प्रेशर बढ़ा दोगे तो मिक्स जो हो जाएगा। सो सैचुरेशन, ये समझ में आया? ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा हैव स्पेस इन बिटवीन देम। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे है जो आपका बुक बोले ना बोले, पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन। अच्छा, ये बड़ा चीज है। मैटर के पार्टिकल्स जो है ना, ये चुपचाप नहीं बैठते हैं, ये हमेशा मोशन में है, वाइब्रेट करेंगे, ये चुप नहीं बैठ सकते हैं। अब मैटर में क्या क्या आता है बेटा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप गैस है तो भी आप वाइब्रेट कर रहे हैं, आप लिक्विड है तो भी आप वाइब्रेट कर रहे हैं, आप सॉलिड है तो भी आप वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हमने क्या देखा? पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन। अब इसका भी एक एग्जाम्पल चाहिए हमें। इसका एग्जाम्पल क्या करें? इसके एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं समथिंग विच इज कॉल्ड अ पेट्री डिश। लैब में पेट्री डिश इज समथिंग लाइक, माइक्रोस्कोप के ऊपर वो स्लाइड होता है। पेट्री डिश इज समथिंग लाइक, इट्स लाइक अ सर्कुलर प्लेट विथ अ सर्कुलर बाउंड्री ऑन इट। हाँ, जैसे हमारे वाटर बॉटल का वो जो तुम हाथ में पहनते हो ना, वैसे ही, बिल्कुल वैसा। हाँ, तुम्हारा कड़ा जो है, हाँ वैसा बेस में प्लेट रहेगा, ताकि पानी डालू तो वहां पे रहेगा। दैट्स कॉल्ड अ पेट्री डिश। हाँ, पेट्री डिश। पेट्री डिश इज समथिंग लाइक द बेकिंग डिशेस व्हिच वी यूज इन अ माइक्रोवेव। द ग्लास बेकिंग डिशेस हैव यू सीन, जहां पे मछली उछली बना के माइक्रोवेव में घुसाते हैं ना, ऐसे ओवल ग्लास वाले रहते हैं ना, समथिंग लाइक दैट। सो इन दैट पेट्री डिश व्हाट यू डू, यू टेक वाटर। ठीक है, यहाँ पे हमने वाटर ले लिया। नहीं देखा है तो इमेजिन करना भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। It's just a tray, a glass tray, circular glass tray with a boundary on it, boxing ring जैसा है, समझ लो। ठीक है, तो इसमें पानी ले लो और यहाँ पे हम क्या डालते हैं? पोलेंस डालते हैं। पोलेंस, फ्लावर के जो पोलेंस है ना, उनको डाल दो ऐसे ही, और इसको एकदम नॉन डिस्टर्बिंग जोन में रख दो। तो आप देखोगे पोलेंस आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये भी हम 9 में पढ़ते हैं। These pollens will be continuously moving and there will be a random motion. Random motion का मतलब क्या है? जो यहाँ पे पोलन होगा ना, इसका कोई डिफाइंड मोशन नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत सारे पोलेंस रख दिए हमने हिबिस्कस फ्लावर के, कोई यहाँ पे आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कोई इधर 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 उधर, ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं रैंडम मूवमेंट। रैंडम मूवमेंट। तुम ना क्लास को डिरेल करने वाली चीजें मत बोला करो। मैं बोला ना लैब कंडीशन में रखा हुआ है ये, तो देयर विल बी रैंडम मूवमेंट। पहले अपना परफॉर्मेंस देखो, वो क्रिएट गेट अ परफॉर्मेंस एंड देन स्पीक ऑल दिस रैंडम अनवांटेड थिंग्स। रैंडम मूवमेंट्स विल हैपन। And 1 minute, and this random movement is said to be a zigzag movement. ये भी जान के रखो। अब ये zigzag movement हमें और एक जगह देखने को मिलता है। सिनेमा थिएटर में आप गए हैं? Cinema theater, you must have gone. So when the movie starts, from the projection room, there is a beam which is falling on the screen. If you look at that beam, then there will be some dust particles. Don't you see those dust particles out there? They are also having कुछ भी एक। और मान लो कि जैसे सहज सोता है, बेडशीट कभी साफ ही नहीं करता है, ठीक है, मान लो, और जो भी पांव से आके गंद धूल बाहर से आके बैठ जाता है, तो मान लो एकदम सुबह मॉर्निंग हुआ है and his room is absolutely dark. You just open the curtain little bit so that allow some sunlight to come. उसी सनलाइट में उसका बेडशीट उठा के डंडे से ठंग करके मारो तो आपको बहुत सारे धूल दिखेंगे, है ना? Have you seen that? ये zigzag movement, इस zigzag movement को एक पर्सन ने आइडेंटिफाई किया था। आप करते तो आपका भी नाम हो जाता। उस पर्सन का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो इसको हम इस मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। अगर उज़ैर करता तो उज़ैरियन मोशन हो जाता। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? ब्राउनियन मोशन इज अ मोशन व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। व्हाट डिड ही डिस्कवर? रैंडम मूवमेंट ऑफ, व्हाट इज, कैन बी एन एग्जांपल ऑफ ब्राउनियन मोशन? रैंडम मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर, random movement of pollens which are spread across on a petri dish of water. Why is it moving? Why is it moving? अब आप particle level में जाइए। Are the pollens matter? Yes. Mass may be less, but they are matter. And the petri dish also has water molecules which are also matter.
तो उनके बीच में स्नूकर खेला खेली हो रहा है, टक टुक टक टुक टक टुक टक टुक। तो ग्रेड 8 में आपके बुक में इसका मेंशन है, दे हैव स्पेसेस बट दे आल्सो आर इन कंटिन्यूअस मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस मोशन को अगर हम एक्साइट कराएंगे ना, तो हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। और इस मोशन को अगर हम सस्टेन करेंगे या एटेन्युएट करेंगे, एटेन्युएशन मींस रिड्यूसिंग समथिंग, तो स्पेस रिड्यूस होगा। आप जस्ट सोचो, अब मैं आऊंगा अर्नब आपके पास, हमारे पास दो पार्टिकल है एंड दीज पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन। अगर मैं इस मोशन को इंक्रीज कर दूं तो आपको लगता नहीं ये, और दो क्लास में दो बच्चे ऐसे बात कर रहा है, धीरे धीरे और भी टीचर नहीं है तो ये यहां से उठ के जाके उसको रबर बैंड भी मार के आ रहा है, स्पेस बढ़ता जाएगा ना। अंडरस्टूड? एंड हाउ कैन यू इंक्रीज दिस मोशन? बाय अप्लाइंग एनर्जी। एंड व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी? हीट। या तो आप गैस के पैन के ऊपर गर्म कर लीजिए तो भी जल्दी जल्दी मिक्स होगा, या फिर आप चम्मच लेके ऐसे कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, स्टरिंग। स्टरिंग इज क्रिएटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जनरेट्स हीट एंड दैट हीट इज सफिशिएंट टू मिक्स दिस टू। उल्टा जब आपने इसको लेके क्या किया, अब ना दे वर इन मोशन, दैट ORS सॉल्यूशन इन वाटर इज आल्सो इन मोशन। आपने फ्रिज में डाल दिया तो इनका मोशन ये, नो नो मैम हैज कम, लेट्स सिट ऑन आवर प्लेस। ए रातुल तू अपने सीट पे जा, निकाल दिया। Just when the teacher comes, you will throw your friend away, ना, मैम आ गया, अपने सीट में जाओ। तो whenever you attenuate the motion, that is you withdraw the heat, the interparticular space reduces. So the thing that we learned, matter has got space, matter also have particles, matter has got particles which have space, and matter have particles which are in motion. This motion actually is responsible for creating this space. More is the heat content with this particle, more upadravi they are, badmash, more space they will create. Less is the heat content. In science we don't study cold, we just study heat. Which is more hot, an ice cream or paneer butter masala made just now? Paneer butter masala. Which has less heat? Ice cream has less heat. Cold नाम का कोई चीज नहीं है। फिजिक्स में हम सिर्फ हीट पढ़ते हैं। आपको लगता है हीट माने जो पकड़ने से गर्म लगे, ऐसा नहीं है। आइसक्रीम ऑल्सो हैज हीट, इट्स हीट इज लेसर देन द पराठा। सो इफ द हीट कंटेंट इज लेस, द स्पेस इज लेस। बोलो बेटू, बहुत देर से चुप रहे। तो सॉलिड्स में नहीं, सॉलिड्स में भी पार्टिकल मूव करते हैं, बट दैट मूवमेंट इज वेरी रेस्ट्रिक्टेड, वेरी वेरी रेस्ट्रिक्टेड, यू वोंट सी दैट मूवमेंट। सॉलिड आखिरकार, बट आप जब एडिशनल एनर्जी देते हो, अब एक काम करो, मैंने तुम्हारे लिए एक डेयरी मिल्क खरीदा, सारा दिन पॉकेट में लेके घूमा, जब तुमको वो डेयरी मिल्क दूंगा तो कैसा रहेगा, खोलते ही पिचकू पिचकू। क्या हुआ उस सॉलिड को? मेल्ट हुआ। डेयरी मिल्क जब लिया था दुकान से, रेफ्रिजरेटर से निकाल के दिया था, टेम्परेचर कम था, पार्टिकल्स आसपास थे, क्लोज पैकिंग में थे। जैसे ही ये रगरू रगरू गर्मी में सारा दिन पार्टिकल्स अलग हुए, तो आप बोलते हो ना, एक पिचकू वाला डेयरी मिल्क मिलने से मम्मी लोग क्या बोलते हैं, अभी फ्रिज में रखो थोड़ा ठंडा होने के, नहीं तो उसको ऐसे निकाल के काजल की स्याही से, ऐसे डेयरी मिल्क तो नहीं खाओगे। क्लियर ना? मजा आया? सो द थिंग दैट व्हाट ही वाज सेइंग, सॉलिड्स में क्या रहता है, सॉलिड। अच्छा, यहां से एक और बात आता है। अच्छा सोचो, इफ आई हैव अ फ्रेंड, जब आप पास रहते हो तब बॉन्डिंग ज्यादा अच्छा रहता है ना, दूर रहने से बॉन्डिंग नहीं रहेगा, ऑब्वियसली बात। इफ पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, देन देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच अदर इज मच मोर। मेरा भाई वो पता नहीं बहुत दूर इंग्लैंड में रहता है, 4 साल में एक बार आता है, अट्रैक्शन रहेगा नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। घर में आसपास रहोगे तो अट्रैक्शन रहेगा। समझ में आ रहा है? सो सॉलिड्स में पार्टिकल्स हैव वेरी लेस स्पेस, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेस स्पेस मतलब व्हाट अबाउट द फोर्स? वेरी हाई, एक दूसरा पार्टिकल को छोड़ने नहीं देता है। इसीलिए जब आप डेयरी मिल्क तोड़ते भी हो, टाइट डेयरी मिल्क तोड़ते हो, डोंट यू गेट कॉर्नर्स एंड एजेस कमिंग आउट? द मेन रीजन ऑफ दैट इज बिकॉज द पार्टिकल्स डोंट वांट टू गेट सेपरेटेड। कैन यू ब्रेक आयरन सो इजीली? ऐसे टक करके तोड़ सकते हो ना, वेरी क्लोज कॉम्पैक्ट, एंड हुएवर इज कॉम्पैक्ट, दैट आइटम इज नोन एज हार्ड सब्सटेंस। गिव्स मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, क्रिकेट बैट इज हार्ड और ग्लास इज हार्ड? यही तो गलती है, ये इसीलिए तो
चमकू साइंस पढ़ रहे हो। क्रिकेट बैट में नेल चला जाएगा, ग्लास में नेल नहीं जाएगा, ग्लास फट जाएगा, लेकिन नेल जाने दे। ग्लास इज ब्रिटल, इट कांट एब्जॉर्ब शॉक। क्रिकेट बैट इज अ वेरी सॉफ्ट आइटम, उसमें एक बोट पिन भी ऐसे चला जाएगा, कॉम्पैक्ट नहीं है। ग्लास इज वेरी हार्ड, दैट्स द रीजन ग्लास को काटने के लिए, यू नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कटिंग? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कटिंग? ओनली अ हार्ड सब्सटेंस कैन कट अ सॉफ्ट सब्सटेंस। लेट मी गिव a nice example. The knife is harder than the potato. Got it? Therefore, the knife can peel the potato. But if you take the same knife and you try to cut the balcony wala grill, आपका knife कट जाएगा. But have you seen hacksaw blade? एकदम पतला रहता है, उससे अगर कैके मारोगे ना, ये बार कट जाएगा. So what does it mean? The hacksaw blade's blade edge is harder than that balcony pillar. Girls and all, if you sometimes go to jewelry shop, and if you're lucky, somebody may come to the jewelry shop with a baby or grown up boy who will come with a very tight ring. बचपन में पहनाया था, पहन ही गया, अभी इस रिंग को काटना है, उसको आप निकाल नहीं सकते हो. ज्वेलर्स के पास एक हैक्सो ब्लेड रहता है. The blade is as thin like a string, but it is very very hard. अगर आपकी उंगली में लगा ना 3-4 बार, उंगली ऐसे कट के चला जाएगा. उससे जस्ट 3-4 बार घिसेगा वो वेरी स्मॉल हेक्सो ब्लेड, 3-4 बार सिल्वर पे घिसेगा एंड द होल रिंग कट्स आउट. हार्ड इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. सॉलिड्स में हम हार्डनेस इंक्रीज कर सकते हैं बाय कॉम्पैक्शन. जितना आप कॉम्पैक्ट करोगे उतना चीज हार्ड होगा. केक में हम जबरदस्ती हवा डालते हैं ताकि केक फ्लफी हो, नहीं तो केक हार्ड हो जाएगा. कुकीज में वही चीज नहीं चाहिए आपको, वरना कुकीज अगर फ्लफी हो गया तो खाने में मजा नहीं आएगा. ठीक है, तो आज के लिए इतना हमने पढ़ा. अगले क्लास में हम इसको, बिकॉज टुडेज क्लास इज मोर ऑफ एन इंट्रोडक्शन. बाय नाउ यू शुड हैव अ कॉन्सेप्ट. व्हाट इज अ मैटर, व्हाट इज अबाउट अ पार्टिकल ऑफ मैटर, एंड पार्टिकल्स आर एसोसिएटेड विद 3 थिंग्स: स्पेस, देन मोशन, and there is another thing called interparticle attraction that also we'll study. And that attraction depends upon how much is the space. Space कम, attraction ज्यादा. Space ज्यादा, attraction कम हो जाता है. देखो ना, दूर में एक मैग्नेट और एक कीला, attraction है? नहीं है. पास दे. अभी देखो, सहज अपना गर्लफ्रेंड को छोड़ के बहुत दूर है, कोई अट्रैक्शन नहीं है. वैसे ही होता है. हाँ बेटो, और कोई एग्जाम्पल पूछो. क्लियर हो गया ना? अभी अगले क्लास में और इंटरेस्टिंग करेंगे इसको. ठीक है, नेक्स्ट क्लास इज ऑन संडे ना. संडे तो मैथ्स है. कर रहे हो तो बस बहुत बढ़िया, वरना सबको उल्टा टांगूंगा मैं बैठ के.